خبر میں خواہ کی ورلہ جوڑ کلینو دوستو سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 20 کے آغاز میں آرطغرل کمرے کا دروازہ توڑ کر خفیہ تہہ خانے میں داخل ہوتا ہے۔ سیمون تہہ خانے میں جب جاتا ہے تو وہاں پطرس یعنی تاجر حسن بھی موجود ہوتا ہے۔ تب سیمون پطرس سے کہتا ہے کہ تم جلدی کرو، ہمیں ابھی بھاگنا ہے، تم آگے جلدی سے جا کر گھوڑے تیار کرو۔ اسی دوران آرطغرل سیمون کے پاس آتا ہے تو سیمون آرطغرل پر حملہ کرتا ہے۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران آرطغرل سیمون کو گرا دیتا ہے۔ آرطغرل سیمون کو کہتا ہے کہ تم مجھے سب بتاؤ گے جو تم جانتے ہو، تم ان زمینوں پر کیا کر رہے ہو، تم کس کے ساتھ کام کرتے ہو اور ہمارے درمیان غدار کون ہے جو تمہارے لیے کام کرتا ہے، آج تم مجھے سب کچھ بتاؤ گے۔ اسی دوران سیمون آرطغرل پر لوہے کا سٹینڈ پھینک کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور آگے سے سیمون کا ایک سپاہی آ جاتا ہے۔ تب سیمون اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ مار دو اسے۔ سیمون کا سپاہی آرطغرل پر حملہ کرتا ہے، اتنے میں سیمون وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آرطغرل اپنے ایک ہی وار سے سیمون کے سپاہی کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اسی وقت ترگت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے تو آرطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ ایک اور راستہ ہے۔ پھر وہ دونوں سیمون کے پیچھے جاتے ہیں۔ اتنے میں سیمون تاجر حسن کی دکان سے باہر نکلتا ہے۔ تاجر حسن سیمون کو ایک جیکٹ دے کر کہتا ہے کہ استاد سیمون گھوڑے تیار ہیں، ہم جا سکتے ہیں۔ پھر سیمون اور تاجر حسن اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اسی دوران آرطغرل اور ترگت تاجر حسن کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آرطغرل اور ترگت سیمون کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن سیمون اور تاجر حسن گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ترگت آرطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے ان کے پیچھے جانے دیں۔ اس پر آرطغرل کہتا ہے کہ ترگت سیمون کو میرے پاس زندہ لے کر آؤ۔ پھر ترگت دوان اور باقی سپاہیوں کو آواز دیتا ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سیمون کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آرطغرل بازار میں باقی سپاہیوں کے پاس جاتا ہے اور دندار سے پوچھتا ہے کہ کیا ہمارا کوئی سپاہی شہید ہوا ہے۔ اس پر دندار کہتا ہے کہ نہیں بھائی۔ یہ سن کر آرطغرل خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں گے؟ آرطغرل کہتا ہے کہ ہم یہاں اسلام لائیں گے، پہلی اذان کے بعد ہم یہاں معزز کارواں سرائے بنائیں گے۔ آرطغرل سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تیاریاں شروع کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ظلم اپنے اختتام کو پہنچا۔ آرطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے لاشیں ہٹا دو، ہم نے اس جگہ کو پہلے جیسا کرنا ہے۔ دوسری طرف سردار جاندار اپنے گھر والوں کے ساتھ حلیمہ خاتون اور علیمہ سلطان کے پاس آتے ہیں۔ سردار جاندار حلیمہ خاتون سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے علیار کا خیال ہے کہ آرطغرل اور دکانی صاحب کو ایک ہی زہر سے مارا گیا ہے۔ علیار کہتا ہے کہ یہ اس کمینے سیمون کا کام ہے، اس کی جادوگرنی بہن ماریا زہر بنانے میں ماہر ہے۔ پھر سردار جاندار کہتا ہے کہ جب وہ ہماری زندگیاں لے رہے ہیں ہم یقیناً آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہم سرائے کو ان کے سروں پر گرا کر ان کے ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہم آرطغرل صاحب کا بدلہ لیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جاندار صاحب آپ پریشان مت ہوں، آرطغرل صاحب اپنا انتقام خود لے رہے ہیں۔ یہ سن کر جاندار اور اورال حیران ہو جاتے ہیں اور علیار کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ دوسری جانب حالی بازار میں آرطغرل کے سپاہی خفیہ تہہ خانے کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور سیمون اور سلیبیوں کے تمام نشان مٹا دیتے ہیں۔ آرطغرل اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے فتح حاصل ہونے پر میں تیرا شکر گزار ہوں، میری فتح کو مستقبل کر دے، اے میرے اللہ مجھے طاقت دے۔ دوسری جانب حلیمہ خاتون سردار جاندار سے کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو واپس دے دیا۔ یہ باتیں سن کر اورال کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن علیار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر علیار کہتا ہے کہ حلیمہ خاتون آرطغرل صاحب کہاں ہیں، کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ تب حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ آرطغرل صاحب سرائے کو سلیبیوں کے غلام سیمون کے سر پر گرانے گئے ہیں۔ یہ سن کر اورال پوچھتا ہے کہ کیا سیمون سلیبی ہے؟ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہاں سیمون سلیبی ہے، اس بزاز سلیبی کا ظلم اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر جاندار کہتا ہے کہ حلیمہ خاتون آپ نے یہ سب ہم سے کیوں چھپایا؟ اس پر علیمہ سلطان کہتی ہے جاندار صاحب ہم معافی چاہتے ہیں، سازشوں کے ہاتھ اب ہر جگہ پہنچ چکے ہیں۔ جب آرطغرل صاحب ہوش میں آئے تو ان کا مطالبہ تھا کہ یہ حقیقت راز میں رکھی جائے۔ کہ چولپان کہتی ہے تو پھر آرطغرل صاحب ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تب علیار کہتا ہے کہ آرطغرل صاحب نے بہترین ممکنہ طریقے سے کارروائی کی، اللہ تعالیٰ آرطغرل اور اس کے سپاہیوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ پھر سردار جاندار اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ ہم ابھی تک یہاں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، میرے بیٹے اٹھو، ہمیں بھی اس مقدس جیت کے لیے اپنا خون قربان کرنا ہے۔ سردار جاندار اورال سے کہتا ہے کہ سپاہیوں کو فوراً تیار کرو، ہم آرطغرل صاحب کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ سردار
जानदार वहाँ से जाने के लिए उठते ही हैं तो इतने में अब्दुर्रहमान खेमे में दाखिल होकर कहता है कि हाइमा खातून आर्तुरुल साहब ने सराय पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और अलियार बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उराल अब्दुर्रहमान से पूछता है कि क्या उस कमीने सिमोन को मार दिया गया। ये सुनकर अब्दुर्रहमान हाइमा खातून की तरफ देखता है तो हाइमा खातून सारी रात कर अब्दुर्रहमान को मना करती है। तो अब्दुर्रहमान कहता है मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है जितना बता दिया उराल साहब। इसके बाद जानदार कहता है कि इस अजीम दिन में हमें आर्तुरुल साहब के पास होना चाहिए। चलो आप आर्तुरुल साहब की तरफ चलें। खेमे से बाहर आने के बाद उराल अलियार से कहता है कि आर्तुरुल ने ये चीज हमसे छुपाई, आर्तुरुल को हम पर यकीन नहीं है। फिर उराल जानदार से कहता है कि बाबा मैंने आपको खबरदार किया था कि जैसे ही आर्तुरुल मजबूत होगा हमारा खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर अलियार गुस्से से कहता है कि भाई वो हम में से हैं, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती। आपने सलीबियों के साथ इतने साल तिजारत की, आपने सिमोन को सोना हासिल करने में मदद की और अब आप तो गुस्सा करेंगे क्योंकि एक मुसलमान ताकतवर हो गया है। ये सुनकर उराल अलियार की तरफ लड़ने के लिए बढ़ता है तो सरदार जानदार रोक लेता है। तब उराल अलियार से कहता है मैं तुमसे तब पूछूंगा जब आर्तुरुल आखिरी चाल चलेगा और हमारा कबीला छीन लेगा। फिर जानदार गुस्से से कहता है कि तुम दोनों को क्या हो गया है, अपनी तजलील करना बंद करो, चलो हम सराय जा रहे हैं। तब उराल कहता है कि मैं नहीं आ रहा, बाबा आप दोनों जाकर अपने सरदार को जाकर इज्जत दो। जबकि दूसरी तरफ असलहान खातून आर्तुरुल को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। उसी दौरान वहाँ चुल्पान आकर कहती है कि पुरसकून हो जाओ आमज़दा मोहब्बत। ये सुनकर असलहान खातून कहती है कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मैं सिर्फ हलीमा सुल्तान की सूरत हाल पर उदास हूँ। फिर चुल्पान कहती है कि मेरे पास तुमको बताने के लिए एक जबरदस्त खबर है, आर्तुरुल जिंदा है, उसने सिमोन के सराय पर हमला करके कब्जा कर लिया है। ये सुनकर असलहान खातून बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती है। उराल के कबीले से जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसी दौरान उसके पास दातुहान आकर कहता है कि आर्तुरुल जिंदा है और उसने सराय पर हमला किया है। इस पर उराल कहता है कि मुझे पता है, मुझे ये बताओ कि सिमोन कहाँ है। दातुहान कहता है कि सिमोन अपनी जान बचाकर भाग गया है, आर्तुरुल के सिपाही उसके पीछे गए हैं। उराल कहता है कि आर्तुरुल के पहुंचने से पहले मुझे सिमोन तक पहुंचना होगा। बातुहान कहता है कि क्या हम सिपाही सिमोन के पीछे भेजें। फिर उराल कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, सिमोन खुद चलकर मेरे पास आएगा क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई पनाह नहीं दे सकता। और बातुहान तुम हजरत रियान का पीछा करो कि वो क्या करना चाहता है। हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान खेमे में मौजूद होती हैं। हलीमा सुल्तान हाइमा खातून से कहती है कि अम्मी जान हालिया वाकयात के मुतालिक सरदारों को बताने के लिए जिरगा बुलाना चाहिए। इसी दौरान असलहान खातून चुल्पान के साथ बहुत खुशी खुशी हाइमा खातून के पास आती है। असलहान खातून हाइमा खातून से कहती है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपका बेटा आपको वापस लौटा दिया। इस पर हाइमा खातून अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। फिर असलहान हलीमा सुल्तान से कहती है कि दुख और खुशी में अब हम एक हैं। तब हलीमा सुल्तान कहती है कि आर्तुरुल के लौटने पर आज रात हम दावत कर रहे हैं, आपको भी मेहमान के तौर पर दावत दी जाती है। हानी बाजार के सराय में आर्तुरुल के सिपाही अपने जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ बमसी और दुंदार आते हैं। दुंदार आर्तुरुल से कहता है कि भाई हमने लोगों और कादरों को बाजार वापस आने पर कायद कर लिया है, वो सब आपकी बातें सुनने के लिए आएंगे। बमसी कहता है कि भाई सब लोग इसी परेशानी में हैं कि उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी और हमने उनसे कहा है कि आप हमारे सरदार को नहीं जानते, सिर्फ एक दफा हमारे सरदार की बातें सुन ले। इस पर आर्तुरुल कहता है कि जैसे हमारी तलवार मजलूमों के लिए उम्मीद है, ऐसे ही हमारी तिजारत भी लोगों के लिए उम्मीद होगी और एक अच्छे ताजिर को मेरे पास लेकर आओ जो बाजार और तिजारत को अच्छी तरह समझता हो। फिर आर्तुरुल अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि हम तिजारत में हराम चीजों से गुरेज करेंगे, हम हलाल के रास्ते से नहीं हटेंगे। अब बाजार पर हमारा कब्जा है, इस बाजार के लोग हमारे लोग हैं, इनकी जिंदगी और इनकी चीजों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दुश्मन दुगने हो जाएंगे और हमारी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमारा सफर और अज़म खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें मुबारक फतवाहत अनायत करे। दूसरी जानब सिमोन और पेत्रोस अपने घोड़े जंगल में भगा रहे होते हैं। सिमोन पेत्रोस से कहता है कि तुम काराचाइसर के गवर्नर के पास जाओ और इस सूरत हाल से उसे आगाह करो, वो तुम्हारे साथ ताउन करेगा। हम में से किसी एक को महल में लाजमी होना चाहिए। पेत्रोस पूछता है कि उस्ताद सिमोन आप कहाँ जाएंगे। सिमोन कहता है कि मैं उराल के पास जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हानी बाजार के सराय में आर्तुरुल के सिपाही बड़े बड़े डब्बे ले आते हैं और जब वो डब्बे खोलते हैं तो वो सोने से भरे होते हैं।
सोने के सिक्के और जेवरात बहुत ज्यादा होते हैं। इतना बड़ा खजाना देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब शमशा कहता है कि सिमोन का छुपा हुआ खजाना मिल गया और दुंदार कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत नहीं देखी। फिर अर्तुगरुल सोने के सिक्के हाथ में उठाकर कहता है कि सोने का हर टुकड़ा स्लेबी फौज की जीत को और हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये इन जमीनों पर हमारा पहला माल गनीमत है। हमारे दीन के मुताबिक हम इसको हलाल तरीके से बांटने के पाबंद हैं। सबसे पहले इसका हिस्सा उन खानदानों में तकसीम होगा जो इन जमीनों पर शहीद हुए। एक हिस्सा हमारे कबीले की जरूरियात के लिए मुख्तस किया जाएगा। दुंदार सोने की तरफ देखकर कहता है कि भाई बाकी सोने का क्या करेंगे। तब अर्तुगरुल कहता है कि बाकी का सोना उन बेघर कबीलों के लिए जो मंगोलों के जुल्म का शिकार हुए, ताकि हम सब मिलकर दुश्मन को शिकस्त दे सकें और सराय की हर तरफ हमारे झंडे लहरा दो। इसी दौरान वहाँ इसहाक आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि हुजूर, मैं खत लिखने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते थे। फिर अर्तुगरुल खत में लिखवाते हैं कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। ये बाजार अब मेरी मलकियत है, सब ये बात जान ले। अब जो मेरी चीजों और इज्जत के मुतालिक बुरे इरादे रखते हैं अब मेरे दुश्मन हैं। अब जुल्म का खात्मा होगा, इंसाफ कायम होगा। जो शख्स ईमानदारी से तिजारत करेगा मेरे बाजार में उसे इंसाफ मिलेगा। जो जुल्म और ज्यादती करेंगे वो मेरा गजब देखेंगे। फिर अर्तुगरुल इसहाक से कहता है कि आखिर में लिखो कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल ऐलान करता है कि मेरी तलवार दोस्तों के लिए एतमाद और दुश्मनों के लिए मौत होगी। ये सब जान ले। फिर इसहाक इस खत को लपेट कर लिफाफे में डाल देते हैं। दूसरी तरफ सिमोन जंगल में घोड़ा भगा रहा होता है। उसी दौरान वहाँ एक जगह पर घोड़े से उतर जाता है और दोबारा पीछे जाकर घोड़े के निशानात मिटा देता है और दोबारा घोड़े पर सवार होकर दूसरी तरफ निकल जाता है। दूसरी जानिब उराल भी सिमोन की तलाश में घोड़ा भगा रहा होता है। इसके बाद तुर्गुत उस जगह अपने घोड़े रोक लेता है जहाँ से सिमोन ने घोड़े के निशान मिटा दिए थे। तुर्गुत कहता है कि यहाँ से निशान गायब हैं। फिर दुआन कहता है कि जरूर निशानात मिटाए गए हैं। तुर्गुत कहता है कि सिमोन ने अपना रुख मोड़ लिया है। इसके बाद सब घोड़े बांध कर इर्द गिर्द निशान तलाश करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान दुआन को घोड़े के निशान नजर आते हैं तो दुआन तुर्गुत को बताता है कि भाई निशान इस तरफ हैं। इसके बाद एक और सिपाही कहता है कि ये निशान चौदार कबीले को जाते हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि वो काफिर उराल के पास पनाह लेने गया है। तुर्गुत कहता है कि उराल तुम इस दफा नहीं बचोगे, तुमसे तो मैं अपने सिपाहियों के खून का हिसाब चुकता करूंगा। फिर तुर्गुत दुआन और बाकी सिपाही सिमोन को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हाइमा खातून सरदारी खेमे में कबीले के सरदारों के साथ मौजूद होती हैं। फिर सरदार कहते हैं कि हाइमा खातून हमें मजीद तखलीर नहीं करनी, हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो एक नए सरदार का इंतखाब करना होगा। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि सबको पहले से पता है कि हमारे कबीले का सरदार कौन है। अर्तुगरुल साहब जिंदा हैं। ये सुनते ही सरदारों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और सब सरदार अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे सरदार को नई जिंदगी दी। हाइमा खातून कहती हैं कि जैसे ही अर्तुगरुल अपने कदमों पर खड़े हुए बदमाश सिमोन के खात्मे के लिए हाली बाजार चले गए और सरदार अर्तुगरुल ने काई परचम सराय पर गाड़ दिया है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद तमाम सरदार बड़े जोश से कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद। फिर हाइमा खातून कहती हैं कि आज रात हम इस जीत की खुशी में दावत करेंगे, इसलिए फौरन आप लोग तैयारियां शुरू करें।